Good morning, everyone. This is the sum we will do today. BK Limited is formed to take over Banti Limited and Kuber Limited. So this is again a example of pure amalgamation. Two companies are getting closed and a new company is getting formed. The summary balance sheet on the date of amalgamation are as given below. So equity share capital of rupees 10 each. So share capital consists of equity as well as preference. So both the shares are of 10 rupees each. Equity share in Banti we have 2 lakh 40, Kuber 1 lakh 60, divide by 10 करेंगे तो number of shares रहेगा 24,000 and 16,000 because they have told shares of rupees 10 each. So 2,40,000 divide by 10, 1,60,000 divide by 10, you will get the number of shares. Same for the preference shares, 1,50,000 divide by 10, you will get 15,000 and 1 lakh divide by 10, you will get 10,000 in Kuber Limited. There is general reserve, profit and loss account. This belongs to the equity shareholders. 9% debentures, creditors, other liabilities. In the asset side, goodwill only in Kuber Limited, building, machinery, furniture, investment, data, stock, cash and bank balance, other current asset, and share issue expense is a fictitious asset as the reserves are distributed to the equity shareholders. Fictitious asset also will be divided among the, also will be given to the equity shareholders. तो क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को में ये शेयर इशू एक्सपेंस को ट्रांसफर करेंगे बिकॉज इट्स अ फिक्टिशियस एसेट मींस इमेजिनरी एसेट एक्चुअल इट इज अ एक्सपेंस व्हिच विल राइट ऑफ इन द कमिंग ईयर व्हिच वी राइट ऑफ इन अ नंबर ऑफ ईयर्स. So this share issue expense also we will give to the we will charge in the equity shareholders account like we will charge the reserves. So they say BK Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each to the public at a premium of 10%. So ये तो BK Limited ने इशू किया पब्लिक में, तो कैश आएगा एंड शेयर विल गेट क्रिएटेड एंड ऑल्सो प्रीमियम विल बी देयर बिकॉज 10 रुपीज का शेयर 10% प्रीमियम मीन्स 1 रुपीज के प्रीमियम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 10,000 इंटू 11 कैश आएगा, 10 रुपीज शेयर का, 1 रुपीज प्रीमियम का. सो ये जो है ये न्यू कंपनी के बुक्स में आएगा. न्यू कंपनी के बुक्स में दिस शुड कम बिकॉज वॉट एवर and like this books this shares are sold by the new company, so new company के book में आना चाहिए. फिर Banti Limited and Kuber Limited were taken over by BK Limited on the following terms. Banti Limited के लिए क्या terms है? They say equity shareholder are to be issued 7 equity shares of rupees 10 each at par in BK Limited and are to be paid rupees 5 in cash for surrender of 6 share for each 6 shares. मतलब देखो, आप अगर बंटी लिमिटेड अगर 6 शेयर सरेंडर करता है, 6 शेयर सरेंडर करता है, तो उसको 2 चीज मिलेगा. उसको 7 इक्विटी शेयर्स मिलेगा बीके लिमिटेड में एंड उसको ₹5 इन कैश मिलेगा इन बीके लिमिटेड. सो ये जो देयर इज दिस कॉमन, दिस थिंग इज कॉमन. देखो 6 शेयर्स इज कॉमन, मतलब यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स आर टू बी इशूड 7 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार इन बीके लिमिटेड. तो 7 इक्विटी शेयर्स मिलेगा बीके लिमिटेड का एंड आर टू बी पेड ₹5 इन कैश. मतलब 7 इक्विटी शेयर्स मिलेगा 10 रुपीज का एंड 5 रुपीज मिलेगा कैश में for
सरेंडर ऑफ ईच 6 शेयर्स, मतलब 6 शेयर सरेंडर करने पे 2 चीज मिलेगा, एक तो 7 इक्विटी शेयर्स और दूसरा ₹5 इन कैश। दूसरा क्या मिलेगा? ₹5 इन कैश। तो इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी परचेज कंसिडरेशन मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड at 10% premium by 12.5% preference shares in BK Limited issued at par। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको जितना भी उनका कैपिटल है भी बंटी लिमिटेड में 1,50,000, उस पे उनको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब 1,50,000 का कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करते वक्त 10% प्रीमियम मिलेगा। मतलब उनको 10% जितना भी है 1,50,000 उस पर 10% एक्स्ट्रा पे करेंगे, लेकिन बाय वे ऑफ व्हाट? बाय इशूइंग 11% प्रेफरेंस शेयर के बदले में उनको मिलेगा 12.5% प्रेफरेंस शेयर इन बीके लिमिटेड इशूड एट पार। मतलब जो बीके लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर्स मिलने वाला है 12.5%, वो पार में मिलेगा, फेस वैल्यू में मिलेगा। लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा, आई मीन प्रेफरेंस शेयर्स मिलेगा, तो 1,50,000 नहीं, 10% प्लस प्रीमियम के साथ बीके लिमिटेड विल पे देम and they will get 12.5% preference shares. All assets and liabilities are valued at book value except machinery, which is valued at 10% below book value and debtors are worth 1,60,000। मतलब न्यू कंपनी का जब हम लोग असेट्स लेके जाएगा, टेक ओवर ऑफ असेट्स का एंट्री जब पास होगा इन द न्यू कंपनी दैट इज बीके लिमिटेड, उनका सब असेट बुक वैल्यू है एक्सेप्ट मशीनरी जो 10% बिलो बुक वैल्यू है एंड डेटर जिसका वैल्यू 1,65,000 था, अभी न्यू वैल्यू दिया है 1,60,000। एंड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो है वो कौन बोन करेगा 12,500 का? बीके लिमिटेड। बीके लिमिटेड इज अ न्यू कंपनी, सो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का भी एंट्री न्यू बुक कंपनी के बुक में आएगा। and discharge of debentures of Bunty Limited at a discount of 10% by the issue of 13% debentures of ₹100 each in BK Limited। मतलब डिबेंचर जो है वो पीसी का हिस्सा नहीं है, डिबेंचर होल्डर्स को डिस्काउंट में पैसा मिलेगा। मतलब अभी 9% डिबेंचर 1 लाख का है, बट दे विल गेट not 1 lakh, they will get 10% lesser because 10% का डिस्काउंट है, तो 1 लाख माइनस 10% उनको मिलने वाला है। बट बाय वे ऑफ 13% डिबेंचर्स उनको क्या मिलेगा? उनको 13% डिबेंचर मिलेगा 100 रुपीज का इन बीके लिमिटेड। तो ये भी न्यू कंपनी में ना उनको नया डिबेंचर्स मिलेगा, ओल्ड कैंसिल होगा, न्यू क्रिएट होगा, that will be there in the new company। इसके बाद कुबेर लिमिटेड के लिए इट इज सेड दैट कैश ऑफ ₹3,000 इज टू बी रिटेन्ड फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस। मतलब यहाँ पे कुबेर लिमिटेड का जो लिक्विडेशन एक्सपेंस है वो कुबेर लिमिटेड ही करेगा, बीके लिमिटेड नहीं। तो 8,000 कैश जो है कुबेर में, उसमें 3,000 हैज टू बी केप्ट असाइड, वो न्यू कंपनी बीके लिमिटेड को ट्रांसफर नहीं करना। 8,000 में 3,000 कैश रख के बाकी का 5,000 विल बी ट्रांसफर्ड। एंड देन debentures and investments are valued at 90% of cost। debentures and investments are valued at 90% of cost। debenture and investment का न्यू वैल्यू दिया है
मशीनरी एंड स्टॉक आर वैल्यूड एट 10% अबाउ कॉस्ट, तो इसका भी न्यू वैल्यू है. एंड अदर असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर वैल्यूड एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट. Fictitious asset will not come in the PC. It will be distributed to the equity shareholders. The preference shareholders are to be paid at 10% premium by 12.5% preference share in BK Limited at par. तो preference shareholders को इवन कुबेर लिमिटेड के preference shareholders को 10% extra मिलेगा, but what they will get in BK Limited will be 12.5% preference shares, but at par मिलेगा एक्स्ट्रा पैसा, लेकिन जो शेयर्स मिलने वाला है वो पार में ही अलॉट होगा. बैलेंस ऑफ पीसी इज पेएबल इन इक्विटी शेयर्स. जब भी ऐसे क्लियरली पीसी नहीं दिया है तो वो नेट पेमेंट मेथड नहीं हो सकता. अंडर नेट पेमेंट मेथड व्हाट हैपेंस इज कंप्लीटली किसको क्या मिलेगा वो क्लियरली दिया रहेगा. जैसे ये बंटी लिमिटेड में इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, क्लियरली दिया है. सो इट इज नेट पेमेंट मेथड. एंड यहाँ पे सेट का नया वैल्यू दिया है, बट व्हाट इज नॉट गिवन इज इक्विटी शेयर को कैसे डिस्चार्ज होगा पीसी, दैट इज नॉट गिवन. तो इसके लिए हम लोग नेट पेमेंट मेथड में तो पीसी नहीं निकाल सकते, बिकॉज तो फिर इक्विटी शेयर्स को क्या मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मिलेगा न्यू कंपनी से, वो क्लियरली दिया रहना चाहिए था. तो इसके लिए ये कुबेर लिमिटेड में हम नेट असेट मेथड में पीसी करेंगे एंड बंटी लिमिटेड में इट विल बी पेमेंट मेथड. नाउ discharge the debenture of Kuber Limited at par by issue of 13% debentures of 100 each in BK Limited. तो पार में मिलने वाला है डिबेंचर एंड बदले में क्या मिलेगा, 10% डिबेंचर्स, सॉरी 13% डिबेंचर्स मिलेगा. जो बंटी लिमिटेड था वहां पे डिस्काउंट में डिबेंचर इशू होने वाले थे, यहाँ पे पार में इशू होगा, बट नया डिबेंचर विल बी 13%, इनको बराबर मिलेगा. एंड जो बंटी लिमिटेड है वहां पे उनको बंटी लिमिटेड को 10% कम पैसे डिबेंचर्स डिस्चार्ज होने वाले थे, कम रेट पे, 1 लाख के बदले में 10% कम. इनको जो डिबेंचर्स है वो 1 लाख का है, बट उनको 1 लाख के ही नए डिबेंचर्स मिलेंगे. फिर द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स इन बीके लिमिटेड इज ऑफ 10 रुपीज ईच. तो बीके लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज के रहेंगे. हमें क्या बोला है, शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स in the book of Bunty Limited and Kuber Limited. Also calculate purchase consideration. तो यहाँ पे हमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है एंड लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करना है. बंटी लिमिटेड एंड कुबेर लिमिटेड बोथ आर द ओल्ड कंपनीज. हमें बीके लिमिटेड के बुक में जर्नल एंट्री भी प्रिपेयर नहीं करना है और हमें न्यू बैलेंस शीट भी प्रिपेयर नहीं करना है. सो ये सब हमें ना बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है आफ्टर अमालगमेशन, ना ही हमें जर्नल एंट्रीज न्यू कंपनी का प्रिपेयर करना है. तो ओनली लेजर अकाउंट एंड पीसी. सो लेट अस स्टार्ट द सम. सबसे पहले इट विल स्टार्ट अमालगमेशन का सम. हमेशा स्टार्ट होता है परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन से. सो लेट अस कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन. बंटी लिमिटेड को क्या मिलने वाला है, बंटी लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को, पीसी किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. बोलते हैं कि 7 इक्विटी शेयर के लिए, सॉरी क्या 6 के लिए ना, 6 इक्विटी शेयर के लिए बंटी लिमिटेड में इक्विटी शेयर के लिए क्या होने वाला है, 7 न्यू इक्विटी शेयर मिलने वाला है इन बीके लिमिटेड.
कैसे पता? हमने अभी क्वेश्चन रीड किया। क्वेश्चन में दे हैव टोल्ड इक्विटी शेयर आर टू बी इशूड 7 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट par in BK Limited and are to be paid ₹5 in consideration for each 6 shares. तो 6 शेयर्स के लिए दो चीज मिलेगा, एक तो ये मिलेगा, फिर इन कैश भी मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमें इक्विटी शेयर होल्डर को दो चीज है, इन इक्विटी शेयर्स कितना मिलने वाला है और इन कैश कितना मिलने वाला है। इन कैश क्या मिलने वाला है? 6 इक्विटी शेयर के लिए मिलने वाला है ₹5 इन कैश। ₹5 इन कैश कौन देगा? बीके लिमिटेड देगा। बोलते हैं 6 इक्विटी शेयर के लिए आपको 7 इक्विटी शेयर मिलेगा बीके लिमिटेड में एंड 6 इक्विटी शेयर के लिए आपको ₹5 इन कैश भी मिलेगा। ₹5 इन कैश फॉर सरेंडर ऑफ ईच 6 इक्विटी शेयर। 6 इक्विटी शेयर के लिए ₹5 इन कैश एंड 7 इक्विटी शेयर बीके लिमिटेड में। दो चीज मिलने वाला है। तो हम लोग को अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हमें बीके लिमिटेड में कितना शेयर मिलेगा वो पता नहीं है, पर 6 शेयर के लिए 7 इक्विटी शेयर। तो हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि बंटी लिमिटेड में टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है। बंटी लिमिटेड में 2,40,000 का शेयर है एंड 1 शेयर इज ऑफ 10 ईच। 1 शेयर इज ऑफ 10 ईच। तो डिवाइड बाय 10 करेंगे, 2,40,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 24,000 शेयर्स है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 24,000 शेयर्स। तो अगर 6 के लिए 7 तो 24,000 इक्विटी शेयर के लिए कितना मिलेगा? वी हैव टू डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो उसके लिए 24,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें पता चल जाएगा कि कितना नया शेयर मिलने वाला है, कितना इक्विटी शेयर मिलने वाला है। जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यू विल गेट 24,000 इंटू 7 डिवाइड बाई 6। 24,000 into 7 divide by 6, you will get 28,000 equity shares of ₹10 पार में मिलने वाला है। ₹10 पार में मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा कितना? 2,80,000। ये हो जाएगा 2,80,000। 2,80,000 और कैश में भी मिलने वाला है। तो 6 शेयर के लिए ₹5। तो टोटल इक्विटी शेयर्स है, टोटल इक्विटी शेयर है 24,000। तो कैश कितना मिलेगा वो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 24,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 6 कितना कैश आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हाउ मच कैश यू आर गेटिंग? हाउ मच कैश यू आर गेटिंग? कैश क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आ रहा है ₹, यहीं पे लास्ट में लिख लेते, आ रहा है ₹20,000। ₹20,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। तो इसके बाद और एक चीज है, प्रेफरेंस शेयर्स ऑल्सो आर देयर। तो जो ये है ना पीसी है ना, पीसी इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है और पीसी मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को 2,80,000 का शेयर और 20,000 का कैश मिलने वाला है, और 20,000 का कैश। सो अभी लेट अस सी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलने वाला है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा उसके लिए ऊपर लेट अस अगेन चेक। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को
पे करने वाले हैं एट 10% प्रीमियम, और उनको मिलने वाला है 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स इन बीके लिमिटेड एट पार। तो what is the preference share? 1,50,000. It is 1,50,000. It is 1,50,000. So 1,50,000 plus 10% प्रीमियम, तो प्लस 10% एक्स्ट्रा मिलने वाला है, तो उससे कितना हो जाएगा ये करो। हाउ मच यू विल गेट, हाउ मच यू विल गेट, you will get 1,65,000. 10% इज 15,000, तो ये 1,65,000 होता है। तो ये 1,65,000 में 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स होने वाला है। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। यही क्वेश्चन में बोला गया है कि 12.5% प्रेफरेंस शेयर इन बीके लिमिटेड एट पार, पर 10 रुपीज का है, ये कैसे पता चला? क्वेश्चन में देखो दिया है कि बीके लिमिटेड में जो भी इक्विटी शेयर है, जो भी प्रेफरेंस शेयर है, उसका फेस वैल्यू विल बी 10 रुपीज, उसका फेस वैल्यू विल बी 10 रुपीज। तो इसलिए मतलब आप डिवाइड नंबर ऑफ शेयर्स भी इसमें फाइंड कर सकते हो। 1,60,000 डिवाइड बाई 10 किया तो इट विल बी 16,500 प्रेफरेंस शेयर्स। सो यहाँ पे लिखेंगे कितना हो गया, प्रेफरेंस शेयर को 1,65,000 मिलने वाला है, तो टोटल पीसी कितना हुआ? हाउ मच विल बी द टोटल परचेज कंसिडरेशन? सबको ऐड करो। इक्विटी शेयर को मिलने वाला है, इक्विटी शेयर्स को मिलने वाला है 2,80,000 प्लस 20,000 दैट इज 3 लाख, और प्रेफरेंस शेयर्स को मिलने वाला है 1,65,000। प्रेफरेंस शेयर का ओल्ड कंपनी में से 1,50,000 था, बट न्यू कंपनी में दे आर गेटिंग 10% एक्स्ट्रा, दे आर गेटिंग 1,65,000। सो टोटल पीसी विल बी एड ऑल दिस 4,65,000. So total PC will be 4,65,000 of which limited? Of बंटी लिमिटेड। सो बंटी लिमिटेड का पीसी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें कुबेर लिमिटेड का पीसी कैलकुलेट करना है। तो कुबेर लिमिटेड के पीसी के लिए ये कौन सा मेथड है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड में क्या होता है, किसको क्या पे करने वाले हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, क्लियरली दिया है। कुछ बैलेंस इतना ये से सब नहीं दिया रहते, एवरीथिंग इज क्लियर। सो कुबेर लिमिटेड का पीसी बिकॉज क्लियरली नहीं दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मिलेगा क्लियरली दिया है, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पीसी। अब ये बैलेंस ऑफ पीसी कितना है ये हमें कैसे समझेगा, बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10% प्रीमियम में पे करेंगे 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स, बट बैलेंस पीसी इज पेबल टू इक्विटी शेयर। बट ये बैलेंस पीसी कितना है वो कैसे समझेगा, तो इसलिए ये नेट पेमेंट मेथड नहीं है। नेट पेमेंट मेथड में एवरीथिंग इज क्लियर, किसको क्या पे करेंगे विल बी क्लियर। सो दिस इज नेट असेट मेथड, नेट असेट मेथड, क्योंकि नया रिवाइज वैल्यू दिया है असेट्स का, लाइबिलिटीज का। सो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ पीसी पता चला। नाउ हम वी विल प्रिपेयर कॉलम, तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, दो कॉलम है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। नाउ व्हाट वी विल डू, दिस इज देयर, हम लोग लेंगे सबसे पहले all assets taken over by BK company, take over by BK Limited in revised और बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू दिया है तो बुक, अगर रिवाइज वैल्यू दिया है तो रिवाइज वैल्यू
नहीं दिया है तो बुक वैल्यू। सो लेट अस सी ऑल द असेट्स, कौन सा असेट्स है, लेट अस सी व्हाट ऑल असेट्स आर देयर। तो हमको ऐसा नहीं बोला है कि कोई असेट को नहीं लेके जा रहे हैं, सब असेट्स को लेके जा रहे हैं, ऐसा कोई असेट नहीं है जिसको नहीं लेके जाने वाले हैं। तो हम सब असेट्स को हम लोग कॉपी कर लेंगे। तो हम लोग का यही फायदा है व्हेन वी आर डूइंग इन द पीसी, बिकॉज वी हैव दिस ऑप्शन टू कॉपी पेस्ट। तो इसके बाद न जिसका नया वैल्यू दिया रहेगा उसका नया वैल्यू लेंगे, और जिसका नया वैल्यू नहीं दिया उसका ओल्ड वैल्यू लेंगे। हम कुबेर लिमिटेड का कर रहे हैं, तो कुबेर लिमिटेड के सब असेट्स को मैंने कॉपी कर लिया। अब इसमें जिसका नया वैल्यू दिया है वो हम चेंज करके नया वैल्यू लेंगे। ओके, जिसका नया वैल्यू नहीं लिया उसका नया वैल्यू नहीं लिया उसका रिवाइज वैल्यू लेंगे। तो कौन से एसेट का नया वैल्यू दिया है, देखो कैश बोलते हैं, 3,000 रख के बाकी का लेना है। तो कैश में से 3,000 माइनस करते हैं, तो कैश कितना है, 8,000 है। उसमें से 3,000 माइनस करेंगे तो 8,000 माइनस 3,000 इट विल बी 5,000। सो बोलते हैं 8,000 का असेट था, कैश था, उसमें 3,000 साइड में रखना है, तो ये 5,000 हो जाएगा। फिर कौन से असेट का रिवाइज वैल्यू दिया है, फिर इसके बाद डेटर एंड इन्वेस्टमेंट का 90% ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। डेटर एंड इन्वेस्टमेंट का 90% कॉस्ट। तो यहाँ पे देखो 80,000 का 90% निकालो, 80,000 का 90% निकालो, और डेटर का भी ऐसे ही बोला है तो 60,000 का 90% निकालो। बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट एंड डेटर हम 90% कॉस्ट में लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 72,000 हो जाएगा। दिस विल बिकम 72,000, करेक्ट। और 60,000 का भी 90% निकालो, डेटर्स कितना हो जाएगा, इट विल बी 54,000। तो जिसका नया वैल्यू दिया है उसका नया वैल्यू, जिसका नया वैल्यू नहीं दिया उसका बुक वैल्यू। मशीनरी एंड स्टॉक को हमें 10% अबाउ कॉस्ट में वैल्यू करना है, तो मशीनरी एंड स्टॉक का ले लो। मशीनरी को 10% अबाउ, तो मशीनरी है 60,000 प्लस 10% करना है, 10% अबाउ कॉस्ट है। और कौन सा, स्टॉक का भी 10% अबाउ कॉस्ट है, तो स्टॉक का वैल्यू है 90,000 प्लस 10%। देखो कितना आ रहा है, स्टॉक का अमाउंट कितना आ रहा है, 90 प्लस 10% विल बी 99,000। चेक इन द कैलसी, मशीनरी का भी 10% एक्स्ट्रा लेना है, तो 60 प्लस 10% विल बी 66,000। फिर बाकी एसेट के बारे में क्या बोला है, बाकी असेट के बारे में बोला है that other assets and liabilities are valued at book value। तो बाकी असेट लाइबिलिटी का बुक वैल्यू लेना है, फिक्टिशियस असेट तो लेते ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे ये सबको ऐड करना है, ये सबको ऐड करना है, तो हमें टोटल मिल जाएगा। तो दिस विल बी अवर टोटल ए। गुडविल का भी बुक वैल्यू लेना है, बिकॉज बोला है बाकी सब असेट का बुक वैल्यू लो। तो लेस क्या करना है, बी ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय बीके लिमिटेड, टेकन ओवर बाय बीके लिमिटेड इन, कौन सा वैल्यू, रिवाइज दिया है तो रिवाइज्ड, नहीं तो बुक वैल्यू। तो वी विल सी हियर कौन सा असेट्स लिया है, कौन सा असेट्स लिया है। देखो यहाँ पे कौन सा असेट लिया है,
कौन सा असेट है इधर, तो यहाँ पे असेट हो गया। अभी लाइबिलिटी लेंगे। लाइबिलिटी बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं बोला है कि कोई लाइबिलिटी को नहीं लेके गए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो ऑल द लाइबिलिटीज आर टेकन, बट हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी लेंगे। इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, ये सब एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी में क्या आएगा, 9% डिबेंचर, क्रेडिटर and other liabilities, this becomes the external liability। तो external liability मैंने लिख लिया। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का कोई नया वैल्यू नहीं दिया, तो बुक वैल्यू ही लेना है। तो हम बुक वैल्यू लेंगे, बिकॉज नया वैल्यू नहीं दिया है, तो बुक वैल्यू लेंगे। तो बुक वैल्यू को ही कॉपी करो, बुक वैल्यू को कॉपी करो। अभी इसका भी टोटल फाइंड आउट करो। फाइंड आउट द टोटल ऑफ बी। फिर हमें पीसी मिलेगा जब हम ए माइनस बी करेंगे। जब ए माइनस बी करेंगे तो हमें मिलेगा परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन इज इक्वल टू ए माइनस बी। A minus B. So add all this, what you get, add all 25,000, 1,40,000, 66,000, 5,000, 72,000, 54,000, 99,000, 5,000 and 10,000, सबको ऐड करो, you will get 4,76,000। ये तीनों को ऐड करो, यू विल गेट 1,64,000। 1,64,000। अभी ए में से बी माइनस करो, यू विल गेट द पीसी। पीसी विल बी 3,12,000 ऑफ कुबेर लिमिटेड। 3,12,000 ऑफ कुबेर लिमिटेड। तो हमें कुबेर लिमिटेड का पीसी भी मिल गया, और हमें बंटी लिमिटेड का ऑलरेडी मिल चुका है। सो नाउ वी कैन स्टार्ट, वी हैव टू डू डिस्चार्ज, बिकॉज नेट असेट मेथड होगा ना, तो हम लोग को डिस्चार्ज अलग से करना पड़ेगा। नेट पेमेंट मेथड का स्पेशलिटी क्या है, नेट पेमेंट मतलब डिस्चार्ज ऑफ पीसी क्लियरली दिया, तो वो अलग से निकालने का ज़रूरत नहीं है। बट कुबेर लिमिटेड का डिस्चार्ज ऑफ पीसी करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स का तो बैलेंस है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है देखते हैं। पीसी से शेयर होल्डर्स को मिलता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया है क्वेश्चन में कि उनको 10% प्रीमियम में पे करेंगे और उनको देंगे 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स इन बीके लिमिटेड एट पार। तो प्रेफरेंस शेयर कितने का है, 1 लाख का है, तो उनको 10% एक्स्ट्रा देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे 1 लाख प्लस 10%, प्लस 10%। तो ये हो जाएगा 1,10,000। 1,10,000। तो ये 1,10,000 में क्या मिलने वाला है, 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच at par, at par। So this will be 1,10,000। और क्वेश्चन में बोलते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा ना, वो बैलेंस होगा। टोटल पीसी हमें पहले से पता है, टोटल पीसी है 3,12,000 कुबेर लिमिटेड का। कुबेर लिमिटेड का टोटल पीसी है 3,12,000। तो इक्विटी शेयर के बारे में क्या बोला है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बैलेंस मिलने वाला है। तो बैलेंस करो, 1,10,000 में से 3,12,000 में से 1,10,000 माइनस करो, तो क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन में दे हैव क्लियरली टोल्ड बैलेंस ऑफ पीसी इज पेएबल टू इक्विटी शेयर्स एट पार। सो बैलेंस करो, कितना आएगा आपको, बैलेंस करने पे व्हाट वी विल गेट, बैलेंस करने पे हमें मिलेगा 3,12,000 माइनस 1,10,000, यू विल गेट 2,02,000। ये 2,02,000 में क्या रहेगा,
ये 2,02,000 divide by 10 because one share is of 10 rupees. This will be 20,200 equity shares. तो ये हमें मिल जाएगा जब डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारे लिए ये बैलेंसिंग फिगर भी आ गया, डिस्चार्ज ऑफ पीसी हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में बोला है इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनीज हमें रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, न्यू कंपनी अकाउंट, और पीसी जैसे डिस्चार्ज होता है ना, पीसी में इक्विटी शेयर्स है 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स है न्यू कंपनी ने, कैश भी दिया इक्विटी शेयर होल्डर को 20,000 का। तो ये तीनों अकाउंट भी हम प्रिपेयर करेंगे। जैसे पीसी डिस्चार्ज होता है तो उसमें क्या दिया जाता है वो सब अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ये सेम टाइप से हमने सम सॉल्व किया है व्हेन वी वर डूइंग conversion of firm into limited company in SYBCom. तो that is this chapter is similar, एकदम related with that conversion chapter. So अब हम क्या करेंगे, let us start the sum. तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है टू वेरियस असेट्स, और रियलाइजेशन अकाउंट में हमेशा क्या होता है, सब असेट्स बुक वैल्यू में आता है, बैलेंस शीट वैल्यू में आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब असेट्स को लेंगे, शेयर इशू एक्सपेंस तो लॉस है वो तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब कॉपी कर लेंगे, सब कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, सब कॉपी करने के बाद हम लोग अभी असेट का वैल्यू लिखेंगे। तो ये कौन सा, रिवाइज वैल्यू नहीं चाहिए, हमें बुक वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ तक पूरा कॉपी करेंगे और आई विल पुट हियर इन द रियलाइजेशन। तो हियर इट विल कम एंड सेम वे अभी क्या करना है, बंटी लिमिटेड का हो गया, अभी कुबेर लिमिटेड के भी असेट्स को ऐसे ही लेना है, शेयर इशू एक्सपेंसेस को छोड़ के, बिकॉज वो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड होगा। तो दिस इज ऑल्सो कम, लेकिन यहाँ पे देखो शेयर इशू एक्स, हमारा जो कैश बैंक है 8,000 नहीं 5,000 आएगा, बिकॉज 3,000 हम अलग से नीचे लिखेंगे। देखो आई विल शो यू, यहाँ पे 8,000 में 3,000 हमें चाहिए, किसके लिए, 3,000 हमें चाहिए लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, जूना कंपनी ने पे किया है तो उसके लिए हमें अलग से चाहिए। तो इसके लिए हम अलग से 3,000 इधर ही दिखाएंगे, दैट आई विल शो यू इन द लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर। नाउ हमें क्या चाहिए, असेट को ट्रांसफर करने के बाद बाय वेरियस लाइबिलिटीज, असेट को ट्रांसफर करने के बाद बाय वेरियस लाइबिलिटीज ट्रांसफर करना है। तो कम हम क्या करेंगे, हम लाइबिलिटीज अभी लिखेंगे, सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज लिखना है। तो कंट्रोल सी, सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज लिखेंगे। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को हम लोग, क्योंकि लाइबिलिटीज कैंसिल करना इस मतलब इस गेन कैंसिल हो रहा है, तो हमने इधर लाइबिलिटीज लिखा और सब असेट रहने दो, लाइबिलिटी रहने दो, हमें ट्रांसफर बुक वैल्यू में करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, बुक वैल्यू में कॉपी करेंगे, बैलेंस शीट वैल्यू कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। और सेम वे अभी हम कुबेर लिमिटेड में भी करेंगे, बंटी लिमिटेड का हो गया, अभी कुबेर लिमिटेड का जो वैल्यू है वो भी हम सेम वे करने वाले हैं। कुबेर लिमिटेड का भी we will do the same way. So this is also done. Now what we will have to do, we will have to write the PC due. So PC मिलेगा फ्यूचर में
कंपनी का नाम क्या है, बीके लिमिटेड, और दिस इज व्हाट, पीसी ड्यू। तो पीसी का क्या वैल्यू है जरा देखो ऊपर, एक का वैल्यू है 4,65,000, दूसरा है 3,12,000। तो इधर लिखेंगे 4,65,000 एंड 3,12,000। सो इसका हम बीके लिमिटेड अकाउंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बीके में बाई का आएगा टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अमाउंट कितना है 4,65,000 एंड 3,12,000। तो इसके बाद क्या ऐसा ये हो गया, इसके बाद देखेंगे कि क्या कोई असेट है जिसको नया फर्म नहीं, नया कंपनी बीके लिमिटेड नहीं लेके गया। नहीं, all the assets are taken in the PC, all the assets are taken by BK Limited. There is no asset, not a single asset which has not been taken over by BK Limited. Then we have liabilities. There are all the external liabilities which has been taken over by BK Limited. तीन external liability था, debtor, creditor, other liabilities सब BK Limited लेके गया है। तो हम क्या करेंगे, क्या कोई एक्सपेंसेस है जो बीके लिमिटेड ने नहीं पे किया और ओल्ड कंपनी ने पे किया। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो बंटी लिमिटेड है उसका बंटी लिमिटेड का लिक्विडेशन एक्सपेंस जो है आर बोर्न बाय बीके लिमिटेड। बोलते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ 12,500 आर टू बी बोर्न बाय बीके लिमिटेड। तो बीके लिमिटेड के बुक में आएगा, लेकिन कुबेर लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन, कुबेर लिमिटेड का जो लिक्विडेशन एक्सपेंस है, देखो पहला लाइन, कुबेर लिमिटेड का जो भी लिक्विडेशन एक्सपेंस है 3,000, वो कुबेर लिमिटेड ने कैश उतना कम पे किया क्योंकि कुबेर लिमिटेड ही लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करने वाला है। तो कुबेर लिमिटेड में जाओ रियलाइजेशन एक्सपेंस में और यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, टू कैश, और ये क्या है ब्रैकेट में लिखो लिक्विडेशन एक्सपेंस, लिक्विडेशन एक्सपेंस। तो हम लोग वैसे हम लोग क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 8,000 के बदले में 5,000 लिख रहे हैं, तो इसके बाद हम इधर 3,000 लिखेंगे। मतलब साथ में 8,000 नहीं लिख रहे, 5,000 ऊपर लिख रहे, 3,000 नीचे लिख रहे। तो कैश बैंक, नहीं तो हमें 8,000 इधर लिखना पड़ता, अब हम 5,000 3,000 सेपरेटली दिखाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे टू लिक्विडेशन मतलब ये जो हमारा कैश है अलग से, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और चीज करना पड़ेगा, कैश बैंक अकाउंट में भी हमें दिखाना पड़ेगा कि बैलेंस वॉट डाउन भी हमें अलग से दिखाना पड़ेगा। एक मिनट रुको, हम क्या करेंगे, इधर टू कैश लिखाना, तो कैश अकाउंट में हमने कैश अकाउंट भी प्रिपेयर किया है, वहां पे कैश इज असेट, कैश इज असेट। तो कैश इज असेट में हम क्या दिखाएंगे, टू कैश इज असेट में दिखाएंगे टू बैलेंस वॉट डाउन, टू बैलेंस वॉट डाउन, कितना बैलेंस, टू बैलेंस वॉट डाउन, टू बैलेंस वॉट डाउन, टू बैलेंस वॉट डाउन, यहाँ पे इट इज वन बैलेंस वॉट डाउन। सो सी हियर टू बैलेंस वॉट डाउन यहाँ पे बताएंगे 3,000। मतलब हमने पूरा 8,000 के कैश में 3,000 जो है कुबेर लिमिटेड ने नया कंपनी को नहीं दिया, तो उनके पास ये बैलेंस बचेगा 3,000 का, वो लोग पे करेंगे। तो इधर देखो रियलाइजेशन में हमने लिखा टू कैश, तो कैश में आएगा, कैश में इधर लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कुबेर का जो 3,000 था वो हमने यहाँ पे खर्च कर दिया, किधर दे दिया, लिक्विडेशन के लिए पे कर दिया। इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ना, उनको उनका बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे। बैलेंस बॉट डाउन,
क्या है उनका बैलेंस कितना है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, जरा देख लेते हैं. इक्विटी शेयर होल्डर्स, it is 2,40,000 and 1,60,000 एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर का है 1,50,000 एंड 1,00,000. तो ये दोनों मैंने नोट कर लिया और मैं अभी दोनों का बैलेंस ट्रांसफर कर दूंगी. कितना बैलेंस है इक्विटी शेयर होल्डर्स का बाय, बिकॉज लाइबिलिटी है तो हमने क्रेडिट साइड में लिखा 2,40,000 और इधर लिखा कुबेर का 1,60,000. सेम वे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस रहेगा, बैलेंस बॉट डाउन. इनका है 1,50,000 एंड 1,00,000, तो इधर लिखेंगे 1,50,000 एंड 1,00,000. और एक चीज ध्यान में रखना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो कंपनी का रिजर्व है वो भी मिलेगा. तो कौन सा रिजर्व है जरा देखते हैं. हमारे पास जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो वो भी मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को. तो मैं कॉपी कर रही हूँ जल्दी होने के लिए. तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये दो चीज भी मिलेगा, तो मैं इधर लिखती हूँ क्योंकि क्रेडिट साइड है तो बाई लिखना पड़ेगा. आई विल राइट डाउन बाई. और अमाउंट देख लेते हैं कितना है. अमाउंट कितना है दोनों का. अमाउंट है, इफ आई विल बी एबल टू कॉपी लाइक दिस, आई एम नॉट एबल टू कॉपी. तो 45, 40, 30, 21, 45, 40, 30, 21, तो दोनों का लिख लेते. सो इक्विटी शेयर होल्डर्स किधर गया, यहाँ पे हम दोनों का अमाउंट लिख लेते हैं. कितना अमाउंट है 45, 40, तो ये इधर लिखेंगे 45,000, 40,000, 45, 40 एंड 30, 21. और ये कितना है 30,000 एंड 21,000. इसके बाद अगर कोई भी प्रॉफिट है तो वो शेयर होल्डर्स को मिलेगा, कोई लॉस है तो वो भी शेयर होल्डर्स को ही मिलेगा. असेट साइड में होता है लॉस, तो यहाँ पे है शेयर इशू एक्सपेंसेस है इधर. तो वो शेयर इशू एक्सपेंस इधर ही आएगा डेबिट साइड में, बिकॉज असेट है तो डेबिट बैलेंस. तो कितना 12,000 एंड 7,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 12,000 एंड 7,000, 12,000 एंड 7,000. तो अभी क्या करना है, नॉर्मली हम रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करते हैं, लेकिन कभी भी अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है तो पहले हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बंद करना पड़ेगा. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पीसी में क्या मिल रहा है, जरा देखो. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पीसी में क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे पीसी पहले डिस्चार्ज करते हैं बाय इक्विटी शेयर्स इन बीके लिमिटेड. दो चीज है, इक्विटी शेयर्स इन बीके लिमिटेड है और है बाय प्रेफरेंस शेयर. कितना परसेंट 12.5 प्रेफरेंस शेयर्स इन बीके लिमिटेड. पीसी में क्या क्या है, इक्विटी शेयर्स के साथ बाय कैश बैंक भी है एक कंपनी में, बाय कैश अकाउंट भी है, कैश अकाउंट ऑल्सो इज देयर. सी द पीसी हाउ इट हैज बीन गिवन. तो पीसी में 2,80,000 एंड 20,000 बंटी लिमिटेड में है, 2,80, 20, 1,65,000, 2,80, 20, 1,65,000. तो इक्विटी शेयर्स इधर है 2,80,000, कैश है 20,000 एंड ये है 1,65,000. फिर व्हाट अबाउट कुबेर लिमिटेड का पीसी. प्रेफरेंस शेयर है 1,10,000, इक्विटी शेयर है 2,02,000. तो प्रेफरेंस शेयर है 1,10,000 एंड इक्विटी शेयर है 2,02,000. और इधर कैश बैंक बिल्कुल नहीं है, कैश बैंक है ही नहीं, कैश बैंक इज नॉट देयर. तो ये अकाउंट तो टैली हो जाएगा. 4,65,000, 3,12,000, 4,65,000 एंड 3,12,000. सो दिस इज डन. तो अभी हम इक्विटी शेयर्स इन बीके लिमिटेड अकाउंट भी प्रिपेयर कर रहे. तो बाई का ऑपोजिट होगा टू
बीके लिमिटेड, टू बीके लिमिटेड। तो क्या है इधर 2,80,000 है और 2,02,000 है। सेम वे बाई प्रेफरेंस शेयर, देखो प्रेफरेंस शेयर कितना है इन बीके लिमिटेड, वो अकाउंट भी बना रहे। बाई का ऑपोजिट टू बीके लिमिटेड, टू बीके लिमिटेड इट इज हाउ मच 1,65,000 एंड 1,10,000। तो ये भी हो गया। अभी जो प्रेफरेंस शेयर को मिला, ये जो 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स है, ये किस और एक चीज है ना इधर कैश बैंक। तो कैश बैंक अकाउंट में जाएंगे, इधर लिखेंगे टू बीके लिमिटेड, टू बीके लिमिटेड। कितना बीके लिमिटेड ने बंटी लिमिटेड को इतना कैश दिया है 20,000 और इधर कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स है, 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स है इन बीके लिमिटेड, ये किसको मिला, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिला। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ये किसको मिला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में। तो ये इधर बंद करेंगे, ये इधर बंद करेंगे और जो भी बैलेंस आता है 1,65,000, 1,10,000, ये पूरा किसको मिला, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिला। तो ये 1,65,000, 1,10,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर बाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट भी हम बना रहे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में हो जाएगा 212.5, ऑपोजिट अकाउंट का नाम प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स इन बीके लिमिटेड। कितना है इधर, इधर लेट अस सी अगेन, इट इज 1,65,000 एंड 1,10,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,65,000 और यहाँ पे लिखेंगे 1,10,000। सो what we will do, we will close this account। यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा, कौन सा साइड हैवी है, ये साइड हैवी है, ये साइड हमारा, दोनों में हम देख रहे हैं कि डेबिट साइड हैवी है, डेबिट साइड हैवी है। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो जाएगा रियलाइजेशन में। तो मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में जो भी डिफरेंस आता है वो किधर जाता है, इट विल गो टू द रियलाइजेशन अकाउंट, इट विल गो टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, कितना डिफरेंस आ रहा है, इधर 15,000 का डिफरेंस आ रहा है एंड इधर 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बाई रियलाइजेशन का लिखेंगे, बाई है ना, तो इधर लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। कितना आया, इधर वी गॉट 15,000, here we got 10,000। अभी हम ये रियलाइजेशन अकाउंट को बंद कर सकते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी डिफरेंस आएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा। फिर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट भी बंद करेंगे। तो पहले तो हम क्या करते हैं, ये अकाउंट में बंटी लिमिटेड को बंद करते हैं। बंटी लिमिटेड को बंद किया तो वी कैन सी दैट द डेबिट साइड इज हैवी 6,68,000। हम देखेंगे कि डेबिट साइड हैवी है 6,68,000। डेबिट हैवी मतलब लॉस बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो ये क्या हो जाता है, रियलाइजेशन लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे टैली करेंगे तो हमें पता चलता है कि लॉस जो है वो 3,000 का है। ये तीनों को ऐड करके 6,65,000 आ रहे, तो 3,000 का लॉस है। सेम वे जब हम बंटी कुबेर लिमिटेड का टोटल करते हैं तभी भी हम देखते हैं कि डेबिट साइड ही हैवी है, तभी भी हमने देखा कि डेबिट साइड ही हैवी है। तो कितना डिफरेंस है, डिफरेंस है, लॉस है 12,000 का। तो दोनों जगह पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को लॉस ही मिल रहा है। तो बाई
जो इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर में हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट मिला, यहाँ पे 3000 मिला, यहाँ पे वी गॉट 3000 और यहाँ पे वी आर गेटिंग 12,000। तो इसके बाद क्या करना है, जो इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स भी हमने बनाया है, इक्विटी शेयर्स इन बीके लिमिटेड, तो इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे। जो भी आएगा वो हम लोग किसको देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे। 2,80,000, 2,02,000, ये जो भी डिफरेंस आएगा वो किधर जाएगा, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्या आएगा, 2,80,000, 2,02,000। तो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स में ऑपोजिट अकाउंट का नाम आएगा बाय इक्विटी शेयर्स, बाय इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, बाय इक्विटी शेयर्स इन बीके लिमिटेड। कितना है बीके लिमिटेड में इक्विटी शेयर्स, 2,80,000 एंड 2,02,000। तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी गलत जगह पे लिख लिया, कौन से, कंट्रोल एक्स, किधर लिखना है, एक लाइन ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में लिखा 2,80,000 एंड इधर 2,02,000। और भी कुछ है, कैश में भी मिला है, तो ये बंटी लिमिटेड, ये कैश बैंक अकाउंट को भी क्लोज करो। तो इधर आता है 20,000, इधर आता है 3,000 और इधर आता है 20,000, इधर आता है 3,000। 3,000 तो टैली हो रहा है कुबेर लिमिटेड का, पर बंटी लिमिटेड में जो मिल रहा है वो किधर जाएगा, कैश जो भी मिला है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में जाएगा, क्योंकि बिकॉज कुछ भी लास्ट में बचता है वो ओनर्स को ही मिलता है 20,000। तो हम लोग इधर जाएंगे, कैश इक्विटी शेयर होल्डर बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स, सॉरी इधर क्या हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और इधर हो जाएगा टू, वहां पे बाई इक्विटी शेयर, इधर होगा टू कैश, और कितने का कैश है, 20,000 का। तो इसके साथ हम देखेंगे कि ये इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट है ना, ये टैली हो जाएगा। 2,45,000 और 30,000। देखो कितना इक्विटी शेयर होल्डर्स आ रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का टोटल कितना आ रहा है, देखो ये तीनों को ऐड करो, ये तीनों को ऐड करो, यू विल गेट द अमाउंट एज 3,15,000, 3,15,000, 3,15,000। एंड जरा ये बंटी लिमिटेड का भी टैली करो, यू विल गेट 2,21,000, और ये भी ऐड करेंगे ना तो इसको भी मिलेगा 2,21,000। इसके साथ ये सम जो है वो टैली हो गया। लास्ट में हमने देखा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट जो है वो दोनों साइड का टोटल इक्वल के साथ टैली हो जाता है। विद दिस द सम इज डन। थैंक यू वेरी मच।